Friends, we are starting this webinar for today. I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshealthforum.com. This website is for specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as ordinary society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more will be added as and when time permits. We have also created a WhatsApp group only for housing society related matters. Anybody wishing to join may send a message to me. I'll add it. Before we start, let me explain the basics of today's topic. Usually and typically, we use Right to Information Act, means RTI Act, to get documents that are held in various state and central government offices. Many times, or say over a period of time, state and central government offices have mastered the art of refusing or delaying or giving vague excuses regarding availability of documents held with them. आपने देखा होगा कि कभी आपने आरटीआई अप्लाई किया हुआ है तो कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एक्सक्यूज मिलते हैं. So that is why I said they have mastered the art of not complying with the RTI Act. Besides RTI application can be used only for procuring or getting data and information. But this RTI does not allow for execution of or conducting of particular work. जैसे उदाहरण के तौर पे आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, टिपिकली प्लेन एप्लीकेशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, आरटीआई एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो. लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कई करेक्शन करना है वगैरह तो वो आरटीआई एक्ट के माध्यम से परमिसिबल नहीं है. हाउएवर, देयर इज अनदर लॉ इन महाराष्ट्र, नाम थोड़ा सा लंबा है, बाय द नेम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट. 2005 में बना था ये एक्ट, which became legally enforceable in May 2006. This act made it mandatory to publish citizens charter. Citizens charter का मतलब कि आप नॉर्मल सिटीजन्स के जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट, उसका सिटीजन चार्टर दे कि मैं डिपार्टमेंट हूं, मैं ये वाला काम इतने दिनों में करूंगा और आपको इतने दिनों में मिल जाएगा करके. तो ये चार्टर में दिया हुआ है. सो दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी to publish citizens charter within 6 months, wherein a list of facilities of services provided by that office or department together with a time limit for providing such facility or services to the general public is to be published. Now, आप जो भी सिटीजन का चार्टर बनेगा वो इस एक्ट के 6 महीने के अंतर में ही बनाना है डिपार्टमेंट को और जनरल पब्लिक को बताना है. आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, जैसे डीएमसी ऑफिस में चले जाओ, पीआरओ के ऑफिस के बाहर सिटीजन चार्टर लगा हुआ होना चाहिए. सिमिलरली व्हेन यू गो टू योर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स ऑफिस आल्सो, देयर शुड बी दिस सिटीजन चार्टर पब्लिश्ड ऑन द कॉमन वॉल ऑफ द डिपार्टमेंट. दिस इज द लॉ. और वो नहीं करते, उसके हम लोग थोड़ी देर के बाद में बात करते हैं. हाउएवर, दिस एक्ट जो अभी हमने बताया, प्रिवेंशन ऑफ डिले डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट, This act cannot be used for sub judice matter. अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो ये एक्ट आप उस चीज के लिए यूज नहीं कर पाओगे. मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में आपके डेप्यूटी रजिस्ट्रार वगैरह भी आ जाते हैं बिकॉज दे आर टर्म्ड एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. यू मे सर्च गूगल सर्च फॉर वेरियस different citizen charter issued by various department of state and central government offices. State और central government के offices में there are thousands of departments, not only one department, there are thousands of department. हर department का अलग अलग काम है, हर department अपना citizen charter publish करना है.
ये कानून बनता है. I have got a personal view which I want to share with you. My personal view is that such citizens charter are usually what I term it as a consolation provided to the public, and such charter does not provide for criminal or civil prosecution on the defaulter officers, and neither does it award any compensation to the citizen for of delay of any action on his application, which in turn means that the public shall remain at the mercy of one-sided citizen charter that is drafted out without active consultation of the civil society member. Civil society member means मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग. सरकार चुनती है, बुलाती है कि भाई आप प्रोमिनेंट सिटीजन हो, आप इस चीज में जानकार रखते हो, एक कमिटी बनाते हैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स की, उनसे सलाह मशवरा करके फिर आगे ये कानून फाइनलाइज करेंगे. फर्दर पब्लिक मेंबर्स are not made aware of such laws, and various citizen charters are changed or amended. एक बार सिटीजन चार्टर बना दिया 2006-2007 में, अभी 2021 है, थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए, नई नई चीजें डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहिए उसके अंदर. ये पब्लिक को एक ये और सर्विस भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अलग से परेशानी होती है, इसके लिए हम ये भी सिटीजन चार्टर में डाल देते हैं ताकि वो सर्विस भी हम लिमिटेड पीरियड के अंतर्गत में उसे प्रोवाइड कर सकें. All such things can be changed for the overall benefit of citizens to make their lives much easier. Like how few things have been done entirely online, obtained online, and with online payment facility as well. आपको पता ही होगा कई चीजें अभी ऑनलाइन हो गई है. If you are aware of, you can have online birth certificates also, and there are many various other things which can be done online. There are scores of examples on this. Maybe government will work further on this thing. That remains to be seen. Using this act, you get right to enforce your rights, your requirements, to get your predetermined work done within time limits. And due to this citizens charter, the authority becomes legally bound to honor their delegated कमिटमेंट. उनको जो जिम्मेदारी दिया गया है डेलीगेटेड कमिटमेंट को बाउंड हो जाते हैं कि भाई एक अर्जी आई है हमारे पास सिटीजन चार्टर में, उसको 3 दिन में देने का लिखा हुआ है, तो हम उसको 3 दिन में ही देना है. दिस इज द एसेंस ऑफ द सिटीजन चार्टर. एंड कंप्लीट एक्शन ऑन योर एप्लीकेशन, फेलिंग विच such officers become liable for departmental punishment. जो डिपार्टमेंट तय करेगा वो. अब डिपार्टमेंट का बॉस है, वो बोलता है कि चलो ठीक है इसको छोड़ दो, गलती हो गई, छुट्टी पे था, बीमार था, नहीं आया, दूसरा काम दे दिया वगैरह वगैरह, तो ये सब पनिशमेंट उसका क्लियर अप हो जाता है. ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट ऑफिस फंक्शन करने का. सो द ऑफिसर्स बिकम लायबल फॉर डिपार्टमेंटल पनिशमेंट and also affecting his promotions and pensions. However, all this needs strong follow-up to its logical end, which initially so seems literally impossible. It is literally impossible, but it is possible with proper efforts and is doable and can be done successfully. हर चीज में मेहनत लगती है, इसमें भी लग जाती है मेहनत. जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यू कैन आस्क अंडर आरटीआई एप्लीकेशन और ए सिंपल डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन. डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन का मतलब एक साधारण कागज में लिखो, मेरा नाम पता ही है, मुझे क्या चाहिए वो लिख दो, अपना सिग्नेचर कर दो, आई अंडरटेक टू पे द रिलेवेंट फीस फॉर द सेम एक्सेट्रा, और डिपार्टमेंट को दे दो. टिपिकली दिस departmental application or a simple or a plain application has to be honored within 30 days by the department. Or you have an option of applying under this POD laws, prevention of delay laws, using this citizen charter. Citizen charter क्या है? उस डिपार्टमेंट के बाहर लगा हुआ है. The citizen charter work or service is limited only to that much only, nothing more. RTI application may be ignored with vague reply and wasting your time. But using this POD citizens charter, the department becomes bound to provide the birth certificate in 7 days
or days defined in the Citizens Charter. Now, on behalf of all the participants, I invite today's speaker, Mr. Mohammad Afzal. Mohammad sir is a social activist since last 42 years, 42 years, and has been representing in the MCGM, matlab BMC Apex Committee. He is also into Traffic Advisory Committee, District Road Safety Committee, International Consumer Rights Protection Council in all consumer district forums. He has assisted in the Consumer Guidance Society of India. He has been working on RTI since its inception. He has been instrumental in bringing changes where lift inspection work is undertaken. And in fact, the Bombay Lift Act 2017 was solely amended because of his PIL, public interest litigation. He is being doing, Mohammed sir is doing social activism as a passion. Today, sir will share his knowledge on possibilities and legal remedies on today's topic, which is how to successfully get your work done from government offices. On behalf of all the participants, we welcome Mohammed sir and request him to share his knowledge with all of us in very simple, non-technical language using common Hindi English. Over to you, Mr. Mohammed Afzal. And thank you on behalf of all the participant friends. Thank you, sir. Please proceed. Hemanji, thank you very much for giving me this platform to put forward this particular act. हम स्टार्ट करेंगे आरटीआई को लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया का इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आप देखेंगे कि आरटीआई जो है हमारे कंट्री में नोटिफाई हुआ अंडर सेक्शन 19(1)(a) ऑफ द Indian Constitution. Maharashtra Right to Information came into being in year 2002. 2005 में RTI महाराष्ट्र स्टेट RTI को रिपील किया गया और सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू बीइंग। बहुत अच्छी बात है कि जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियन को अगर डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो सिटीजन्स को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनको पब्लिक अथॉरिटीज को उनको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो पब्लिक अथॉरिटीज है। ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज विच आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट comes under the State Information Commission, and all those public authorities which are governed by the Central Act comes under the Chief Information Commission, which is in Delhi. आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे वेरियस लेवल्स ऑफ एप्लीकेशंस करने की सुविधा है। आप आरटीआई फाइल करते हैं, अगर आपको उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, तो यू कैन गोइंग फॉर द फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और अगर आपको 30 डेज में अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हाँ अगर आपका एप्लीकेशन ट्रांसफर होता है within the same public authority, then they are given 5 days more. So instead of 30 days, आपको 35 days के अंदर आपको information मिल जानी चाहिए। If your application pertains to third party, which comes under section 10, ऐसे सूरत में आपको 40 days के अंदर information मिल जानी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए, ऑर्डर भी इशू हो जाना चाहिए। Thereafter, अगर आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलता है या आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं मिलता है, तो आपके पास रेमेडी है कि आप सेकेंड अपील कर सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी आपको समाधान नहीं होता है, तो आप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द आरटीआई एक्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पे लकूना ये है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस एक्ट में आपका प्रावधान है कि आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। अब ये आरटीआई को हम इससे क्यों रिलेट कर रहे हैं
जब हम कोई भी पीआईएल फाइल करते हैं या हम कोई भी कोर्ट में केस फाइल करते हैं, तो पहले हम अपनी मजबूती करते हैं कि आरटीआई के तहत हम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिक्योर करते हैं। एक दफा वो हमारे पास होता है, उसके बाद ही हम पीआईएल में जाते हैं या कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं, या फिर ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं, कंप्लेन फाइल करके विद वेरियस पब्लिक अथॉरिटीज। अब ये समझ लीजिए कि आरटीआई को लेके आपको सिटीजन को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो कहीं का भी आरटीआई कहीं भी लगा सकता है। तो बेसिकली आरटीआई इज अ टूल जिससे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर आप आगे जाके आपको पीआईएल फाइल करना हो या और कुछ करना हो या कंप्लेन फाइल करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आरटीआई सीमित रहती है। अब हम चल के बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट 2005। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये काफी लंबा एक्ट है और इसको दो हिस्सों में उन्होंने बांटा है। एक तो इट इज रिलेटिंग टू ट्रांसफर और सेकेंड जो पार्ट है इट इज प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्जिंग द ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट। अगर हम ये समझ लें, ये एक एक्ट जो है बहुत छोटा से एक्ट है, हार्डली 16 सेक्शन का है, which can be divided into the transfer part and which can be divided into POD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POD कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिले। एक आम सिटीजन को पूरे एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 पे आप उनको गौर करना है, उनको पढ़ना है, which is as it is very very simple। सेक्शन 8 यही कहता है कि citizen charter has to be prepared and published by the public authority within 6 months from enactment of this particular act, जो कि 2005 में हुआ था। ठीक है। सेक्शन 9 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर को लेके आप ये समझ लीजिए कि मतलब जो भी जैसा फाइल्स होते हैं, अगर वो अर्जेंट है तो अर्जेंट फाइल्स जो है वो मतलब उनको विद इन द सेम डे उनको करना है। सॉरी, इमीडिएट फाइल जो है, जो अर्जेंट फाइल है उनको 4 दिन के अंदर उसका समाधान करना है, और जो ऑर्डिनरी फाइल है उसको 45 डेज के अंदर उसका समाधान करना है, आपके ग्रीवियंस को एड्रेस करना है। अब यहाँ पे सवाल यही उठता है कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जब आप कोई भी डिपार्टमेंट में अप्रोच करते हैं तो सबसे पहला तो उनका जो रवैया होता है, उनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है बहुत रिसेप्टिव होता है। वो फ्लैटली आपसे कहेंगे कि भाई हम इस एक्ट के बारे में नहीं जानते। तो आपको इंसिस्ट करना है कि मुझे इसी एक्ट के तहत मुझे एप्लीकेशन फाइल करना है। वो आपसे इंसिस्ट करेंगे कि अगर समझो कि एग्जाम्पल के अगर आपको रशनिंग ऑफिस का, जैसे हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था रशनिंग ऑफिस का और हमने प्रॉपर्टी टैक्स का पायलट प्रोजेक्ट किया था, तो उनका ये कहना था कि आपको अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो हमारे फॉर्मेट में ही आपको एप्लीकेशन फाइल करना। ऐसे सूरत में मैंने उनको बोला कि मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे कैसा है कि 3 लेवल्स है। एक तो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंट का हेड है, एंड यू हैव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये 3 लेवल्स है। तो जब उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया तो मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बात करनी है। अब हेड ऑफ द, आप ये समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे, अब जैसे बीएमसी है, बीएमसी में आपका हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आपका एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है और इस किस्म के वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स। तो जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करता है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, जैसे कि अगर आपने एप्लीकेशन के वेस्ट में डाला तो के वेस्ट में जब आपने डाले तो एक तो होता है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो हेड करता है वो है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वार्ड ऑफिसर। तो आप
मैंने जब उनके पास गया, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गया और मैंने उनको ये एप्लीकेशन बताया। ये एप्लीकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ये सारे एप्लीकेशन ए, बी एंड सी जो है वो एप्लीकेंट को भरना है। जो डी है जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली फिल्ड बाय द ऑफिसर। तो जब मैं ये एप्लीकेशन लेके गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो ही वाज वेरी मच अवेयर। अब क्या है, ये एक्ट की खूबी ऐसी है कि इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। इसमें उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भी रिकॉर्ड की जाती है, जिसके वजह से एक बहुत भयभीत उनको डर होता है। तो जब मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका क्लर्क लेने से इनकार कर रहा है और मुझे इसी एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करनी है। जब मैंने उनसे एक्ट की बात की तो ही वाज वेरी मच अवेयर। ही इंस्ट्रक्टेड द क्लर्क कि आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से आप इनको एक्नॉलेजमेंट दीजिए और मैं इनको इस एक्ट के तहत एक्नॉलेजमेंट दूंगा। अब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उन्होंने डी के फॉर्म में उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट दिया विद द स्टैम्प एंड सिग्नेचर। वो डी के अंदर वो इनवर्ड नंबर उनको डालना होता है, डेट ऑफ द एप्लीकेशन डालना होता है, टाइम फ्रेम डालना होता है कि एज पर द सिटीजन चार्टर एंड एज पर देम कितने पीरियड में वो आपका काम करके देंगे, एंड दे एक्नॉलेज एंड दे गिव इट टू यू। दो जगह मैंने ये एप्लीकेशन किया। बोथ आर डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटी, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट वो इफेक्ट जो इलेक्ट्रीफाइंग जो इफेक्ट था दैट वाज फैंटास्टिक। अब ऐसा हुआ कि मीरा भयंदर में नया कमिश्नरेट आया हुआ है, तो जो बिल्डिंग के अंदर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में डेप्यूटी रजिस्ट्रार की ऑफिस थी, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट था, वेरियस अदर बीएमसी के डिपार्टमेंट्स वहां पे थे, तो उनको वहां से खाली करना था और हैंड ओवर करना था बिल्डिंग को पुलिस कमिश्नर के डिपार्टमेंट को। अब ऐसा हुआ कि सारे कमरों में ऊपर से नीचे तक चादरों में लिपटी हुई फाइल थी, और वी कैन अंडरस्टैंड कोविड का टाइम था, और वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर वाज वेरी स्केलेटन स्टाफ, और वो वहां से दूसरे जगह जाने के लिए तैयारी में थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने मुझे 4 बार खुद से फोन किया और स्टेटस बताया कि अभी ऐसा सिचुएशन है, हमने वार्ड ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया है कि आपके एप्लीकेशन पे आके साइन करें, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने आके साइन किया। और फिर ऑफिसर का, मुझे प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का मुझे फोन आया कि क्योंकि कोविड का टाइम है, हम नीचे आके आपको गेट पे आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो हम डिपार्टमेंट के पीछे भाग रहे थे, मगर ये एक्ट को यूज करने के बाद डिपार्टमेंट आपके पीछे भागती है, वो आपको इंटीमेट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मेरा काम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर हो गया, और रैशनिंग ऑफिस में करीबन 10 दिन के अंदर हो गया। रैशनिंग ऑफिस का भी सेम एक्सपीरियंस था, 3 से 4 बार उनका फोन आया और उन्होंने बाद में लास्ट में इंटीमेट किया कि आप आके आपका राशन कार्ड ले जाइए, और प्रॉपर्टी टैक्स वालों ने कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करिए। बीइंग अ गुड सिटीजन, मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं किया था कि आई एम एन एक्टिविस्ट। तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं जो हमने अडॉप्ट की थी और पायलट प्रोजेक्ट को लेके, तो हमने एक ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से हम इस एक्ट को यूज करना चाह रहे थे, जिसका 100% रिजल्ट आया। आपको मालूम है ये पर्टिकुलर एक्ट वाज इनएक्टेड इन 2005, और इसके जो रूल्स हैं वो 2013 में फ्रेम हुए हैं। अब एप्लीकेशन जो है इस रूल के अंतर्गत आते हैं, जो मराठी में भी आपको मिलेंगे और इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे। तो आप अगर मराठी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन मराठी में करिए, और इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में करिए। इसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा, और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ में और
आप वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट है उसको भी आप भर के अटैच करें. आई थिंक सो इट इज अ वेरी फैंटास्टिक एक्ट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोपेगेट करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए सिटीजन्स में, और सिटीजन्स का काम है कि वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करें. अमूमन क्या होता है कि दो किस्म के लोग होते हैं. अभी मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग में मैं शिफ्ट हुआ हूं, देर आर 9 बिल्डिंग्स और देर आर अबाउट 700 फ्लैट्स. जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे वही चर्चा चल रही थी कि देयर वाज अ मिडिल मैन हु वाज ब्रॉट इन, जिन्होंने कहा कि भाई अंडर द टेबल 1000 रुपीज देना पड़ेगा, ओवर एंड अबव द ऑफिशियल फी है, और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो लोग जो है आज की तारीख में एक तो उनके पास वक्त नहीं होता है तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं. मगर मेरा मानना ये है कि अगर वो थोड़ा से भी अगर वक्त निकाले, this particular way of doing things is hardly going to take about half an hour of your time besides the commuting time. आप वहां पे जाएंगे, आप एप्लीकेशन फाइल करके आएंगे, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द रिस्पॉन्स विच दे हैव गिवन, विच इज वेरी वेरी इलेक्ट्रीफाइंग. और मैं समझता हूँ कि सो फार इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड बहुत बेहतरीन एक्ट है. लोगों को इस चीज को तुरंत फैलाना भी चाहिए, सोशल मीडिया में भी फैलाना चाहिए और खुद भी यूज करना चाहिए. ये बहुत छोटा सा एक्ट है और इसको एक्सप्लेन करने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट्स ओनली दैट पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग इट, एंड आई एम 100% श्योर दे विल गेट 100% रिजल्ट. इट्स ओनली अ टाइम of half an hour that they have to devote. That's it. ओके सर, जैसे आरटीआई एक्ट अभी द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड in most departments, the government has provided RTI filing of RTI application on online basis, payment of online fees as well. Is this particular facility available on this application? Is court fee stamp to be fixed on this application? No, Can this application be filed online as well? नहीं, मेरे ख्याल से ऑनलाइन का अभी इसमें फैसिलिटी नहीं है, और कोई किस्म की कोर्ट फी स्टैम्प की जरूरत नहीं है. इट इज अ सिंपल फॉर्मेट इन ABCD. आपको सिर्फ भरना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी, एंड जस्ट सिंपली गो एंड फाइल इट. For the benefit of all the participant friends, this act and rules have been forwarded to me by Mr. Muhammad. And if anybody requires that thing, he may send a request message to my number, and I will be able to forward this act and rules along with form ABCD, जो मोहम्मद सर ने अभी डिस्क्राइब किया हुआ है. So you can do that. Also, if you type this particular act in Google, you will be able to get this act and rules from Google also. However, if you are having any difficulty, you may send me a message and I will do the needful. Also, I have put Mr. Mohammad's phone number in the chat box. If anybody requires, since Mr. Mohammed is a social activist, if anybody requires any help from Mr. Mohammed, he will be definitely able to guide you on the telephone itself. Mr. Mohammed, can you describe something more on this act, like what all the citizen charter contains as far as housing society or cooperative department is concerned? Do you have any information on that? जैसे कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सिटीजन चार्टर में क्या क्या लिस्टेड है, एक अप्रोक्सीमेट अगर आपको आप फ्रेंड्स को बता सके तो. देखिए, इसमें ऐसा है कि देयर आर वेरियस वर्क टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिटीजन चार्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि सर्टेन सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड एंड देयर आर सर्टेन सर्विसेज स्टिल टू बी नोटिफाइड, बट दे से दे अश्योर कि दैट इट इज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, it is
इट विल हैपन। बट अभी कैसा है कि हमने आरटीआई के थ्रू कई जगह सिटीजन चार्टर को लागू करवाया है, लागू करवाया है। और आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहला तो आपको दिखेगा सिटीजन चार्टर। वो सिटीजन चार्टर में आपका जो सर्विसेज नोटिफाइड है वो मेंशन है, उसका टाइम फ्रेम मेंशन है और उसकी फीस है वो मेंशन है, ऑफिशियल फीस जो है वो मेंशन है। तो अगर आपको आपका कोई भी काम है वो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आता है, देन डेफिनेटली यू कैन मेक एन एप्लीकेशन। और जैसे कि आपने बताया कि जैसे सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट है, अगर कोई भी मैटर सब जुडिस है या केस इज रिफर्ड टू लोक आयुक्ता, अपर लोक आयुक्ता कमीशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है, या केस रिलेटेड टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, या लेजिस्लेशन को लेके, या मेजर पॉलिसी डिसीजंस को लेके, सिर्फ ये जगह में ये अप्लाई नहीं होता है। बट अदरवाइज जहां पर भी सिटीजन चार्टर है वहां पे जितने भी सर्विसेज नोटिफाइड है उसके अंतर्गत आप बहुत आराम से इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जहां तक कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की बात है तो देयर वाज जैसा कि आप इट्स अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, बट जैसा कि किसी ने मुझे अप्रोच किया था सम टाइम बैक, अबाउट अ मंथ अगो, उनको मैंने गाइड किया था, उनका काम नहीं हो रहा था, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ गए थे और उनका काम नहीं हुआ तो ही कॉन्टेक्टेड मी। मैंने बोला आप एक काम करो, आप ये एप्लीकेशन फाइल करो डेप्यूटी रजिस्ट्रार। अब डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जब वो गए तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। ही रिवर्टेड बैक टू मी, देन आई सेड कि आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन फाइल करिए। जब ये उनके पास गए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। द मोमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का इस एप्लीकेंट को मोबाइल पे फोन आता है कि सर आप गए क्यों वहां पे, मैं आपका काम कर ही देता हूं। और इस तरीके से उन्होंने उनका काम कर दिया। अब सेम चीज अगर हम देखें, जब शुरुआत का दौर था आरटीआई को लेके कि हम कोई एप्लीकेशन लगाते थे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, पीएमसी को ही ले लीजिए, तो कभी कदार भले ही आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलता था मगर आपका काम हो जाता। तो यहाँ पर भी अगर आपको आपके काम से मतलब है तो अगर आपका काम हो जाता है तो आई थिंक सो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। बट you can go by the act and you can make an application. Since this webinar is related to housing societies, most of our friends are concerned about issues that crop up in housing societies. अभी MCIS एक्ट के अंदर में there are various applications given to the deputy registrar, एक complaints दिया जाता है कि और मेरे को ये एनओसी नहीं दे रहा है, यूजुअल कंप्लेंट है जी। रजिस्ट्रार के पास ऑफिस में देते हैं। एक्सपीरियंस शोज कि द रजिस्ट्रार इज यूजुअली नॉट इंटरटेनिंग दोस एप्लीकेशंस। राइट। सिमिलरली अगर कोई कमिटी को डिस्क्वालीफाई करने का एप्लीकेशन है या इंस्पेक्शन का एप्लीकेशन है या कोई वायलेशन किया हुआ है सोसाइटी कमिटी ने, उसका एप्लीकेशन है वगैरह वगैरह। So these applications, do you know whether there are citizen charter for this in the cooperative? Yes. बिल्कुल। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का भी सिटीजन चार्टर है। इट इज अराउंड 83 पेजेस। 83 पेजेस। ओके। आई हैव इट, मैं आपको भेजूंगा। यस सर। और उसमें पर्टिकुलर पेज है जहाँ पे सिटीजन्स कैन गो थ्रू इट एंड ये जो एप्लीकेशन को किस, ये कंप्लेंट्स को किस टाइम पीरियड में इसका समाधान होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी उसमें होगा। तो यू, बिकॉज इट इज इन मराठी, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द पीपल। आई विल इन्फॉर्म यू which particular page is important as far as the deputy registrar is concerned, and the citizen can take it forward from there. Okay, so this charter is in Marathi actually. Yes. Okay, have you come across the English version of this thing? No. Or is there a English version available? Frankly speaking, मैंने मतलब मैंने ढूंढा नहीं है. Okay. But it is very effective.
Uh, there are few questions in the chat box. Will you'll be able to read it, or should I read it out to you? रीड कर दीजिए. ठीक है. Before that, like to inform you, Mr. Afzal, that your friend Mr. Sandeep Jalan has said hello to you. Yeah. I guess He is a very old friend of mine. In fact, इन्होंने represent किया था मुझे in my PIL for the lift. Okay. Mr. Satyanarayan Gaur has a query wherein asking can we use RTI as well as delay in discharge in duties? That is, I think you describe it as DOP. POD, prevention of delay. Okay, so we will abbreviate it to POD. So he is asking, can we use RTI as well as POD simultaneously? जी, देखिए इसमें कैसा है कि ये दोनों का जो पर्पस है आरटीआई का और ये पीओडी का जो पर्पस है इज टोटली डिफरेंट. आरटीआई इज जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन. आप जब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसके बाद में आपको सोचना पड़ता है कि आप इसको किस यूज में लाएंगे. ईआईएल में लाएंगे, कोर्ट रिलेटेड इश्यूज में लाएंगे या ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए लाएंगे. मगर पीओडी जो है इट इज प्योरली टू गेट द वर्क डन, गेट थिंग्स इम्प्लीमेंटेड. तो ये दोनों में काफी अंतर है. ये प्योरली है टू एड्रेस योर ग्रीवेंसेस. आई थिंक देयर इज नो लीगल इन्फॉर्मिटी या कोई लीगल लेकुना नहीं है अगर एक ही चीज के लिए हम दोनों एप्लीकेशन कर दें. जैसे आपने बताया कि आरटीआई में वो 10 रुपए का कोर्ट फी लगाना है, एप्लीकेशन दे दीजिए, वो 30-35 दिनों में उसका कामकाज होना है. होना ही नहीं होना है, जैसे मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ. और डिपार्टमेंट अभी दे हैव गॉट एन एक्सपर्ट इन हाउ टू सर्कमवेंट थिंग्स. दैट इज द लेटेस्ट न्यूज दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम वेरियस सिविल सोसाइटी. बट इन पीओडी जैसे आपने बताया कि एक मुद्दत तय, एक अवधि तय, एक ड्यूरेशन तय है कि ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट 3 दिनों में देना है. अब देना ही देना है तो वो देना है. बट even if you put an RTI application, I'm answering to Mr. Gaur, and if you put a POD application, it is perfectly legal. There is no harm. Both the departments are POD. There is no PIO in the department. There is an officer delegated for this purpose. That officer delegation has not been given a designated name. It may be described in the citizens charter, but under RTI, the officer is separately delegated the word public information officer, PIO. तो ये दोनों अलग अलग है. I think you can make an application under POD as well as you can make an application under RTI. The department has no jurisdiction to question you कि आपने एक ही चीज के लिए 2 एप्लीकेशन क्यों डाला हुआ है. There is another question by Mr. Cherian. Please provide name of act with identification details so that it could be taken up from internet. Mr. Cherian, I have already put the name of the act in the chat box. However, if anybody requires the act, please send me a message and I'll WhatsApp it to you. Also, when Mr. Mohammed will send me that citizens charter for this cooperative department, it will be in Marathi, but still it will be useful. I'll try to get my webmaster to convert it into English. I'm just going to try. If I do it successfully, then I'll be loading it onto our website also for the benefit of all the friends. So that we have already put in the names over there. नॉर्मल कंडीशन में अगर हम कोई भी काम रैशनिंग ऑफिस में करवाने जाते हैं, यस सर, चाहे वो चेंज ऑफ एड्रेस हो, चाहे चेंज ऑफ नेम हो, तो उनका जो प्रोसीजर होता है कि एप्लीकेशन के बाद उनका ऑफिसर आके पर्सनली विजिट करता है, वेरीफाई करता है. वेरीफाई करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करता है और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर आपका काम होता है. अब वो जो टाइम फ्रेम होता है वो कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका 1 महीने में भी हो जाए या आपका 2 महीने में हो जाए. दिस इज वन वे. This could be one way of discouraging you to file an application directly, and but you can go to the agents. आप तो जानते हैं कि एजेंट्स लोग exorbitantly चार्ज करते हैं. तो जब आप ये एक्ट के तहत अगर आप ये एप्लीकेशन करते हैं और अगर उन्होंने
जो टाइम फ्रेम उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट में दिया है इन फॉर्म डी, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जब आप कंप्लेन करते हैं तो strict action is taken. They have got no other go other than taking action. और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब उनके एसीआर में उनका ये रिकॉर्ड होता है कि भाई उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो जो भी डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स हैं उसके तहत सारे एक्शन ली जाती है। So this thing has to be kept in mind. Sir, a technical question comes in is कि under RTI we have जी got three levels of authorities. One is the PIO, जी one is the first appellate authority. I think it is called as FAA, and then the second appellate authority. राइट। इसी तरह क्या ये पीओडी में भी appellate authorities है या डायरेक्टली ही उस पर एक्शन है? नहीं, देखिए विद इन द डिपार्टमेंट इट गोज थ्रू 3 प्रोसेसेस। 3 लोगों के पास ये जाता है, वो आप एप्लीकेशन करते हैं, फिर वो ऑफिसर के पास जाता है, वो वेरीफाई करता है, फिर उनके बाद जो दूसरा ऑफिसर होता है वो इसको एंडोर्स करता है और साइन करके और स्टैम्प करके आपके हाथ में देता है। तो द प्रोसेस इज इट गोज थ्रू 3 लेवल्स। और यहाँ पे अगर आपको ये 3 लेवल्स के बावजूद अगर काम आपका नहीं होता है इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम एज मैंडेटेड इन द सिटीजन चार्टर, तो देन यू कैन इमीडिएटली फाइल अ कंप्लेन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन समझो के वेस्ट में रहता है तो वो के वेस्ट वार्ड के लोकल वार्ड में अप्लाई करता है कोई भी चीज के लिए, कोई अगर एफ वार्ड में होता है तो वो एफ वार्ड में, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और वो पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो हेड है, जैसा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी द वार्ड ऑफिसर। तो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर वो कंप्लेन करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तो उनको एक्शन लेना ही लेना है। और ये भी होता है कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट से पहले ही आपका काम कर दिया जाता है। So as That's- such, there is no authority wherein you can put an application for appeal against this thing. There is only a provision of complaint. No, it's not there in the act. Okay. So shall we consider it as a civil society member? Can we consider it as a lacuna for the citizen charter? नहीं, सो फार जो हमने एक्सपीरियंस किया है मैं समझता हूं कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, Okay. बिकॉज आपका काम होना ही होना है। क्या है, मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सिटीजन्स को कि बहुत सिंपल से एक्ट है, आपको कहीं नहीं देखना है, आपको सिर्फ सेक्शन 8, 9, 10 पढ़ना है, विच कम्स इन अ पर्टिकुलर पेज, और आपको एप्लीकेशन करना है और यू हैव टू डिवोट जस्ट हाफ एन आवर टू गो एंड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। और आप देखिए इट्स गोइंग टू हैव इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, और आपके पीछे वो डिपार्टमेंट के लोग आपको आगे से रह के फोन करेंगे, आपको आगे से रह के काम करके आपको देंगे। It's very positive you have mentioned, Mr. Mohan. Very, very positive. Mr. Gaur is asking, please get the format ABCD. Sir, I've already shared the act. You can download it from Google, or you can send me a message. I will send you this particular document. Anybody can send me a message, and I'll definitely forward these things to you. These things have been already forwarded to me at my request by Mr. Mohammed. I have it with me. I will immediately forward it to you. There is nothing to hide. टिपिकली अपने सोसाइटीज में कैसे डॉक्यूमेंट मांगने जाओ तो वो सोसाइटी वालों को ऐसा लगता है कि भाई हम उनका ट्रेजर मैप का खजाने का ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, तो वैसा नहीं है. वॉट एवर इज अवेलेबल will be definitely shared with everybody. That is our purpose also. Sir, there is a question by Mr. Sarfaraz. He is asking, I had made a complaint to KDMC and APMC Market, Kalyan. Okay. KDMC should be Kalyan Dombivli Municipal Corporation. So he has made a complaint to KDMC and APMC Market, Kalyan, regarding encroachment by hooligans of recreation ground in front of our society. Also, when applied under RTI, opposite party was informed of the same. मतलब इन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला होगा अथॉरिटी को,
जी इसके बारे में, और वो आरटीआई अथॉरिटी ने ऑपोजिट पार्टी जो चोर उचक्की हूलिगन्स वगैरह जो हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी आरटीआई एप्लीकेशन आई है, इस बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ही सीकिंग योर गाइडेंस ऑन इट। देखिए आप देखिए को लेके भी द मोमेंट यू गो टू द बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट, तो वहां पे आपको सारे आर्किटेक्ट्स ही मिलेंगे, जैसे कि आर्किटेक्ट्स का वो ससुराली है। तो कहने का मतलब ये है कि द मोमेंट आप वहां पे कोई एप्लीकेशन डालते हैं, साधारण एप्लीकेशन डालते हैं या आरटीआई के थ्रू डालते हैं, तो इमीडिएटली ऑपोजिट पार्टी को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है। अब अगर आप टीओडी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर के बीएमसी के पास ऑफिस में, वहां पे देखना पड़ेगा कि आपका सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर में आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रीवेंस है उसका टाइम फ्रेम क्या दिया हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर टीओडी। ओके सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के जो एक साहब थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था मंथ बैक, और उनका काम हो गया, तो सिमिलर ग्राउंड्स पे इनको भी बोलना राइट आउट। Mr. Sarfraz, do you want to ask anything else to Mr. Mohammed? You can ask your question directly to Mr. Mohammed. Mr. Mohammed, I just want to ask him that it's a green zone area and recreational ground which is for the public purpose. But can the APMC give on lease? They are telling we are going to give on lease. When we complain about this, that their hooligans are occupying this open space, and actually it is in green zone and it is an RG ground, recreational ground. ओके, ये आपका मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आरटीआई में ज्यादा फिट होता है, क्योंकि आप आरटीआई के अंदर आप अप्रूव प्लान पूरे वो पर्टिकुलर एरिया का आप पूरा अप्रूव्ड लेआउट प्लान आप मांग सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट either you can file a grievance or you can even go to the court. Okay sir, we are trying to file this case because by filling the dumping and all charter, right? Sir, by the illegal hooligans are occupied that place and they have done some dumping on that dumping ground, which I think that the dumping procedure is to be first the permission is taken to be the from the Tehsildar office. Otherwise, it is illegal of dumping anything on open space. So no permission was taken. And when I filed an RTI complaint, the KDMC officer, C-Ward officer, had informed the opposite person, and they were quarreling with me. So he is only enjoying by seeing that two people are fighting, and he is just delaying the paperwork. नहीं, आप देखिए, आप एक तो आप उनका अप्रूव लेआउट प्लान मांग सकते हैं, आप वो जो भी है आरजी है या जो भी है उसके नॉर्म्स आप मांग सकते हैं। एक दफा आपको नॉर्म्स कि वेदर इट इज इन कंप्लायंस विद दैट पर्टिकुलर नॉर्म्स और दैट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, देन फ्रॉम देयर ऑन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। मिस्टर सरफराज, आई विल ऐड वन थिंग फॉर योर बेनिफिट। अगर आपके पास में 2-4 लोगों का 10 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, आप 10 लोगों का 10 अलग अलग एप्लीकेशन बनाइए 2-2 दिनों के अपार्ट में, फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 381 of the local municipal laws. 381 is relating to what is called as nuisance on public spaces. Right. Okay, this is 381. Section 2, Section 2Z of the DC rules also covers this nuisance, as well as 381 of the BMC Act. In BMC, KDMC लगभग जो म्युनिसिपल लॉज है लगभग सेम होते हैं उसके अंदर, but you can counter check it. Don't bother about this. Just write about application under section 381 of the Municipal Act, और आप वहाँ के 1-2 फोटोज निकाल के दे दीजिए, और उसके आपका जो कंप्लेंट का वर्णन है कि कब से ये चल रहा है, और ये करिए। उसमें आप ये पक्का लिखिए कि कॉमन ओपन ग्राउंड आर बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल यूसेजेस and it is being monetized by the encroachers. ये आप एक अर्जी बना दीजिए, और आप मत डालिए, ये आपके सर्कल को बोलिए अलग अलग लोगों को 2-2 दिनों में ये अर्जी डालना शुरू कर दे। इस पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इट इज एन इनडायरेक्ट वे
of achieving something. If you can manage to do it, परेशान होने से जगह पे ये कोशिश करना अभी आपको बेटर पड़ेगा. You can also petition the collector office for this thing. Yes. Okay. So you can contact your own local lawyer for the purposes and get your work done. Okay. Now next question is Thank you, sir. welcome. Next question is by Hemant Birji. He is asking, in spite of tabling a request through RTI, the common man comes across so many excuses thrown back at them. What are the common ones? How does one address them? Please help us with your experience. Mr. Mohammed. देखिए हेमंत जी, मैंने ये देखा है कि आरटीआई को लेके सही तरीके से आरटीआई फ्रेम करना, आपको डिमांड करना है, आपको सही तरीके से आप फ्रेम करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. लोग क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं और जिसकी वजह से स्ट्रेट अवे पीआईओ जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देने से नकार देता है. तो आपको ये मानना है, देखिए हम मराठी में कहते हैं आहे ते मिळेल. जो उनके क्लोसेट में डॉक्यूमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ सीडी हो, सर्कुलर्स हो, जो भी इन मटेरियल फॉर्म हो, वही आपको मिल सकता है. दे आर नॉट गोइंग टू जेनरेट समथिंग फॉर यू एंड गिव यू. तो आपका एप्लीकेशन इस तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए जहां पे आप उनसे मांग सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी हो, या अगर सर्टिफाइड कॉपी आप मेंशन भी नहीं करें तो प्लीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ सो एंड सो सर्कुलर, notification, minutes of the meeting, so on and so forth. That's it. Okay. Mr. Hari Murlidhar wants to ask you 2 questions. Namaste, Arshad ji. I'm a practitioner of 10 delayed decisions since for quite some time. Okay, कुछ सवाल हैं जो थोड़ी हेल्प करेगी हमें भी. पहले ये मैं बिगर फॉर्मेट यूज करता था तो भी इसकी इफेक्ट आती थी, बट ये 10-1 जब लगाएंगे ना, जरूरी नहीं कि हम फॉर्मेट हम खाली लिखते हैं कि 10 लगाएंगे, डिले डिसीजन 10-1 के तहत ये इन्वेस्टिगेट करना फॉर बेनिफिट ऑफ बात कर रहे हैं डिले डिसीजन 10-1. अच्छा, ओके. आप 10 लिखते हैं. 10-1 में क्या होता है, शो कॉज नोटिस मैंडेटरी होती है और इसमें शो कॉज नोटिस देके उससे जवाब मांगा जाता है. फॉर बेनिफिट ऑफ यू एंड एवरीबडी इन द पार्टिसिपेंट, there is a case law, okay, पद्मश्री बेनाडी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. इस केस लॉ में जाके हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें लिखा जाता है जब ये 10-1 इन्वोक किया जाएगा ना, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, उसको शो कॉज नोटिस सर्व ही करना है. 10 I think so, just elaborate 10-1 of which particular act? ये डिले इन डिसीजन 10-1 जब लगाएंगे ना, तो डिले इन डिस्चार्ज का उसको शो कॉज नोटिस सर्व करना मैंडेटरी हो जाता है. 10-1 में तो खाली वो हिलेगा, रहे 10 लगाया, 10-1 लगाया, शो कॉज नोटिस, और उसके सीआर में लिखना, ये सब चीज होगा. बट जब ये नहीं होता इम्प्लीमेंट है ना, ये कुछ एक सिचुएशन में नहीं होता इम्प्लीमेंट, बिकॉज मैं काफी बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, ही इज नॉट आईएएस ऑफिसर. अब मुझे ये समझना है, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का, आईएएस लेवल का ऑफिसर अगर काम नहीं करे उस पे, तो मैं कहाँ जाऊँ, फिर कोर्ट ही जाना है. Are you sure कि this is section 10(1) जो है of the Prevention of Delay Act? Yes. Then in that case, then you have to complain to the competent authority. हाँ, so अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक चला गया हूँ, बट इम्प्लीमेंट जब मैं when I had applied against deputy registrar, they all got shook, बट एक्शन नहीं हुआ. See, एक्शन क्या होता है, सर्विस रिकॉर्ड में लिखना, अभी सर्विस रिकॉर्ड की बुक देखने नहीं मिलती है. दैट्स अगेन अ क्वेश्चन. अभी नाउ आई एम फाइटिंग कि मैंने एक आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 में मैंने एक जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर का मैंने ट्रांसफर कराया इसी एक्ट के प्रावधान पे. ठीक है, सक्सेसफुली ट्रांसफर करा दिया. इनफैक्ट ही वांटेड कम बैक टू मुंबई. मैंने उसका मुंबई में भी आने को रोक दिया. मतलब आई वाज सो एग्रेसिव विद हिम. तो बोला क्यों इतना पर्सनल है? बोला नहीं, उसको हटाना है, मतलब बॉम्बे में नहीं, मतलब ट्रांसफर था तो ही वाज टेकिंग सेम बॉम्बे में ले रहा था. Now I am going because this is not happening, because मैं भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अगेंस्ट में फाइल करूंगा, बिकॉज आपने कोई एक्शन नहीं लिया डिवीजन जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए. इसमें अगर कुछ आपकी कुछ है, और आई कैन टॉक टू यू 1-to-1, वी आर इन टच विद ईच अदर, मैं आपसे बात भी कर लूंगा. कैसे कुछ आइडिया दे उसमें कि फॉर बेनिफिट, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी. हाँ,
यू मे ट्राई फाइलिंग एन RTI एप्लीकेशन कि आपने जो कंप्लेन किया है उसका कुछ नहीं what is हुआ। the- नहीं नहीं, मैंने किया है, मैंने स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल किया, बट Okay. अभी अभी रिसेंटली फाइल्ड, आई पुट इट। अभी इट सो हैपेंड, अभी एक जो सवाल आया ना, ये जो अभी कि कोविड दौरान में ये एक्सक्यूज ले लेंगे कि कोविड के दौरान था, इसके लिए हम एक साल में कोई एक्शन नहीं ले पाए। इसका कुछ रास्ता दिखना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट। एवरीबडी, गवर्नमेंट ऑफिसर वे आर वर्किंग ड्यूरिंग कोविड पीरियड। अभी इस दौरान में भी फिर भी कहेंगे अरे कोविड था, हम ये नहीं कर पाए। तो इसकी उसकी उसकी लूप होल्स नहीं छोड़नी है, नहीं, कुछ है उसमें। हाँ, अभी जैसे कि मतलब यानी कोविड का टाइम होने के बावजूद भी वी आर ट्राइंग फॉर वर्चुअल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो समझे। तो अभी वी आर गोइंग इन फॉर सम कंटेम्प्ट पिटीशन। ओके। बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मतलब यानी द लास्ट ऑप्शन दैट इज बैलेंस इज टू अप्रोच द कोर्ट ओनली। ठीक ठीक है, लास्ट ऑप्शन अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखना है। लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स ऑन इट, बिकॉज ठीक है, समझा। कोविड टाइम्स का कुछ ग्राउंड लेके हम रिलीफ नहीं दे सकते ना, वी कैन हैव दैट थिंग आल्सो। ठीक है, Mr. Hari, I think you can Thank you, approach thank you. the minister also against what you are saying. Hmm. You may petition the minister Hmm. and request for a hearing in the matter. Hmm. Try that. If you are successful, you might get lucky about it. ठीक ठीक। Okay. Thank Do you, you have thank any other questions? No, please. There is a long question by Mr. Shyam Sundar Bubna. Ji. He's saying, I made 3 RTI application to Cooperative Department on June 2nd, 2021. As I received no response, I preferred first appeal against all the applications on 6th August 2021 and fixed for hearing on 23rd August 2021. Okay. It is not sure as the deputy secretary who was to hear online is transferred as per WhatsApp message, and on inquiry being made by desk officer, no response received on time. Well, since this matter is sub judice, जी. hearing already fixed हो चुकी है आपकी, so I think people need to wait for a proper answer. There is another question by Advocate Fatima Fauzdar. Good evening, Mohammed Afzal sir. Yeah, good evening. So my question is, I have updated on the chat box, but I just want to know that during this COVID pandemic, because of the COVID, government employees are taking the excuse of COVID pandemic and making excuses in performance of their duties. So with the disaster management and the epidemic act, does it contradict the citizen charter and the prevention of dealing? Actually, I don't know how would you relate this thing to POD है या RTI को लेके है, but basically आपने क्या मांगा है, मतलब what is your grievance? I didn't get you. On behalf of Fatima Madam, I will just read out the question once again, and we will try to see, because it is relating to this epidemic act also, and then in relation to the citizens charter. Sir, Citizens charter under POD. you said that as per the act, the employees are bound to perform their Provided whatever services that you are availing comes under the citizen charter. Mr. Mohammed, she is trying to say कि epidemic is in force. Okay. So गवर्नमेंट ऑफिसेस नहीं है, या गवर्नमेंट ऑफिसेस ये बहाना ले रहे हैं, जैसे कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो सरकार का डायरेक्शन था कि मिनिमम 10% गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ से ऑफिसेस चलेंगे, टोटली ऑफिसेस बंद नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफिसेस है, और बाकी 50% अपने घर से काम करेंगे। 40-45% लोगों का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। तो ये था कि भाई अगर एक ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों का प्रेजेंस डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा, पब्लिक को टोटली तकलीफ ना हो। उसमें से 50% लोग घर से काम करेंगे, जिसे हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट। बट अभी इस एपिडेमिक में, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे ले लो कि आपने पीओडी एक्ट के अंदर में सिटीजन चार्टर में बर्थ सर्टिफिकेट साथ देने का लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन इस एपिडेमिक की वजह से, बिकॉज ऑफिसेज आर क्लोज्ड, the staff is not there, then what happens to this citizen charter?
how to implement it. Would the officer be responsible, or everything should be treated as an act of God, and everything should be kept it as like suspended animation? The act, the citizen charter, act means POD Act, citizen charter, and the epidemic act should superimpose all the other acts. आई डोंट थिंक सो वो मेंशन है, बट इन्होंने एप्लीकेशन कब किया था? It is a general question. It's a general question. ओके, नहीं, आई थिंक सो अभी तो हालात काफी बेहतर हो गए हैं, so I think so they can try it under POD. Okay. Just for info of Fatima ma'am and our other friends, let me add कि पैंडेमिक एक्ट जब लागू होता है तो लिटरली ऑल द अदर एक्ट्स आर केप्ट अंडर एनिमेटेड सस्पेंशन. जैसे हाईकोर्ट ने बोला कि मैंने स्टे दिया हुआ है, स्टे 10 अगस्त को खत्म होगा, पर कोर्ट ये बोलती है कि अब जब तक ये नहीं अनाउंस होगा तब तक ये स्टे आगे बढ़ता रहेगा. So that actual stay order which was issued up to 10th August, let us say, is under suspended animation. Suspended means ये जो है जहां है वहीं पे रहेगा. अब इस पे आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी, because Pandemic Act is the most superior act due to this Disaster Management and Epidemic Act. So the short answer is कि if this Epidemic Act is enforced, all the other acts will remain under suspended animation. It will not be curtailed, but it will remain under suspended animation. The government itself, we have also to understand, is in a literally helpless situation under this Epidemic Act. तो जितना होता है उतना करेंगे, बाकी पेंडिंग रहेगा. हेमंत जी, मैं आपको बताऊं Yes, कि sir. ये जो हमने जो एप्लीकेशन जो लगाई थी अपना एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इट वाज समवेयर अराउंड 2 months, यानी मिड्स ऑफ अ लॉकडाउन. तो ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो शी कैन ट्राई इट आउट. Yes. रोहन. Okay, sir. There is next question by Paul Anthony. His question is: a society has not received OC for the past 4 to 5 years. Can we use the citizens charter to obtain the reason why OC is not given, reason why not issued, which department to contact, and get the information under citizens charter? मेरे ख्याल से ये आरटीआई के थ्रू ज्यादा बेटर रहेगा. इफ दे कैन आस्क फॉर द नॉर्म्स एंड इनका लेआउट प्लान क्या है एंड कितने टाइम पीरियड में सीसी निकला था उस और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होता है. तो मेरे ख्याल से दिस थिंग वुड बी मच बेटर इफ ही अप्लाइज अंडर आरटीआई. Okay. For information of Mr. Paul, the department and the officer responsible for OC वगैरह वगैरह is the executive engineer, BP department, that is building and proposal department of BMC, of that ward. जैसे मानो आप अगर आप आर वार्ड में हो तो आर वार्ड का ईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट अलग होगा, पी वार्ड का अलग होगा, के ईस्ट का अलग होगा, एंड सो एंड सो. There is another question by Neelam M. Assistant registrar not give documents to my complaints and RTI application. Sir, my question is that, sir. Sir, may I ask, sir? Yes, please, Sir, Mr. Go ahead. डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो मिलते नहीं है, सोसाइटी देती नहीं है, बहुत साल हो गए. अभी इश्यू क्या है कि हमने उसको आरटीआई में एप्लीकेशन किया तो पीआईओ ने बोला हमने 154 बी में सोसाइटी को कागज दे दिए. फिर आरटीआई फर्स्ट अपील में हमने वापस उनके पास गए तो वही बोले कि हमने 154 बी में हमने किए, हमको कोई भी आरटीआई में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अभी हमको सेकंड अपील करने का है. जब आरटीआई एक्ट इज डिफरेंट एंड सोसाइटी एक्ट इज डिफरेंट, तो अभी ये जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार और सोसाइटी के जो है उनके साथ कुछ तो हमको डॉक्यूमेंट्स, कोई जनरल बॉडी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे, तो क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, मेरे ख्याल से ये आपको समझने की जरूरत है कि सोसाइटी की तरफ से देयर आर ओनली certain types of documents that are submitted to the deputy registrar.
और जैसे कि आपको मालूम है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है. इट इज ओनली द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट कम्स विच इज अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार. तो अक्सर ये पाया गया है कि जब आप कोई भी आरटीआई फाइल करते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ, वो सोसाइटी को लिख के देता है कि भाई आप इनको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, एंड सब्सिक्वेंटली आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं. तो देयर इज अ लकूना ओवर हियर. तो अब क्या करना पड़ेगा सर हमको, क्योंकि सोसाइटी डॉक्यूमेंट देती नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े भ्रष्टाचार है, तो देती नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट. और रजिस्ट्रार के पास हम 8-10 साल से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो टालम टोला आइए लेके जाइए, हर बार ऐसे बहानाबाजी करते हैं और देते कुछ नहीं है सर. दैट इज यू मे ट्राई आउट द कंज्यूमर कमीशन. ओके सर. तो वी हैव टू सिटीजन चार्टर्ड या और अपना जो पीओडी वगैरह चल सकता है उसके ऊपर, सिटीजन चार्टर वगैरह कुछ? नो नो. अच्छा, तो सिर्फ कंज्यूमर कमीशन में ही चलेगा आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से कंज्यूमर कमीशन में ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर प्राइस. ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. Sir, the next question is by Mr. Satyanarayana Gaur, whether right to service is Okay. different from POD. Do you have any Uh, idea about right to service? speaking, so actually I haven't worked on a right to service so far. There is a question by Seema Tyagi. जी. As per section 154B8, जो amendment हुआ अभी जुलाई 2019 में, जी. I had written a letter to office bearer to show general correspondence and general accounts related document of the society, which was denied. So I forwarded my above letter to the deputy registrar with a complaint letter attached Mhm. after 15 days as per bylaws. The clerk issued a notice to the office bearer to show the documents to me, but used ambiguous terms. Didn't mention the time period within which the documents were to be given. Okay. So This is the question. इंस्पेक्शन के लिए अगर वो मांग रहे हैं तो दे आर सपोज टू गिव 3 ऑप्शंस. उनको 3 ऑप्शन देने चाहिए डेट एंड टाइम का, whichever Yes, is sir. suitable. Yes, sir. So typically, for the benefit of Seema Tyagi, Okay. the department has to be replied back within 7 days of receipt of that particular notice. Else you may follow it back with the deputy registrar. Everybody knows that this department is overloaded with work or whatever. I do not know that. But this department works apathetically. That also is a fact and everybody knows about it. So you need to keep on trying. There is no other option. There is a next question by Mr. Paz. If we feel that registrar is delaying our case or hearing or order, can we use this POD Act to get our work done quickly? जैसे कि मैंने अपने टॉक्स में बताया था कि देयर वाज वन जेंटलमैन हु हैड अप्रोच्ड मी. मैंने उनको बोला था ये पीओडी के अंडर एक एप्लीकेशन फाइल करें और उनका काम तुरंत हो गया. मे बी यू कैन ट्राई इट आउट कि भाई रिस्पॉन्स टाइम उनके सिटीजन चार्टर में दिया हुआ है शायद. ओके, तो उस चीज को लेके आप एप्लीकेशन फाइल करिए. तो आई थिंक सो you definitely something will come out of it. Okay. Okay. All the questions are over from the chat box. If anybody has any one-to-one questions, please unmute and may ask before we conclude today's session. Hemant sir and Mohammad Afzal sir, thank you for addressing my question and query. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. This is Seema Tyagi. I wanted Okay. to know, isn't the clerk supposed to mention 1 month's period or maybe 45 days or whatever is applicable in the letter? Because that term, that period was not mentioned. I know that it has happened because of that. But isn't he supposed to mention the time period, 1 month or 45 days, whatever is applicable? Just like an RTI, because it's a government notice. It is a government notice. Seema ji, ऐसा है कि the department is supposed to be mentioning the time period, but it is a great thing that the department at least answered your application and put the society on notice to provide you the documents. As I mentioned earlier, the department usually has to mention the word 7 days, 7 divsat. But if it has not been done, you derive right to follow it back by saying कि
7 दिन हो गया है या 15 दिन हो गया है या 1 महीना हो गया है, मुझे आंसर नहीं मिला हुआ है, इस चीज को आप एस्केलेट करके हियरिंग लगाओ साहब इस पे। ओके, हियरिंग का Okay, सेक्शन sir. है, आप उसमें हियरिंग का सेक्शन आप लिख सकते हैं, इट इज 154B 27 154B -27 of the amended act. You may read the section, and under that section you may put up an application requesting the registrar to conduct a hearing. Please do it. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much for your precious time. I will write to you about this on WhatsApp, actually what had happened. Okay, sir. Thank you. Okay, Mr. Hemant Mirji, you wanted to ask something? You have unmuted yourself. Okay. Yes. Hemant Mirji is asking to throw some light on the PIL filed by you Okay. on the lift matter. If you can explain something in very briefly in few minutes, for Okay. the benefit of, because you have done a very great job amending the Maharashtra Lift Act is what is not a small job. Right. And we wish to also thank Advocate Sandeep Jalan for taking up this matter and getting a favorable order in your favor. We appreciate you, sir. Sir, please go ahead. Actually, क्या था कि in Maharashtra there were about 86,000 and more lifts in the entire Maharashtra, and there were only 16 engineers. And Very as per the Bombay Lift Act, it was mandatory on the part of the lift inspectors to inspect the lift twice in each year. Then during the proceedings, they came out with so many different acts of different state, and unfortunately, instead of increasing the number of inspections, they in fact inspection to once a year. Now, what is happening is that every year 5,000 new lifts are being added. So things are really very pathetic. But we also in the entire petition, more than 265 engineers were inducted through MPSC on a very urgent basis. जबकि कई सालों से the state government was requesting bringing in new engineers, but which was not happening. So this was another positive thing that happened. And subsequently, they amended the entire Lift Act, which was almost about 75 years old. So that's it. MPSC is Maharashtra Public Service Commission or somewhat it is? Yes, yes, that's right. That's right. मैंने अभी भी मेरा PIL मेरा अभी भी RTI फाइल था. It so happened the second appeal was filed somewhere last year, about maybe about 15 months ago. And in between, I changed my address. And it so happened a second appeal was called out. I was not informed, in spite of giving an application to the State Information Commission, having informed them that I have changed my residence. So वो एक चीज हो गया कि वो second appeal आया and it just passed off without me being intimated. I came to know later. And congratulations to you for getting around the PIL and making changes, compelling changes in the Lift Act. And once again, I will also congratulate Advocate Sandeep Jalan by taking up this PL and helping out all citizens of Maharashtra and all lift users also. So it was a great thing that you did that PIL, and Mr. Advocate Sandeep Jalan helped you in all this affairs as well. So thank you, Mr. Mohammad Afzal, for all your knowledge sharing in today's webinar. Now, with the permission of all our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you once again, and we will conclude this session for today. Thank you, Mr. Mohammed. Sir. Thank you, Ma'am Pratima also. And thank you, Advocate Sandeep Jalan. Thank you, sir, and bye-bye, everybody.